चूनिया में पीरा फोर्स के एहलकारों ने मुबैना तौर पर 3 सगे भाइयों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। ਉਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਛੱਡੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਟ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਇੱਧਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, इस तरह धमकियां दे रहे थे। खाली हाथ हम लोग गए हैं। रुस्तम भाई मुझे बताएं, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी एक वीडियो गर्दिश करती है जिसमें आप रो रहे हैं और आप अपना जिस्म दिखा रहे हैं कि मुझे पीरा फोर्स वालों ने मेरे ऊपर मुझे मारा पीटा है और उसके बाद आपके भाइयों के ऊपर आपके ऊपर FIR दे दी जाती है, इनके ऊपर भी तशद्दुद होता है। ये कितनी इसमें सच्चाई है? सच बात बताइएगा मुझे। और क्या सूरत हाल है, क्योंकि मैं आपका अभी मौक़िफ़ लेने आया हूँ। आपके बाद मैंने पीरा फोर्स के जो इंचार्ज हैं उनके पास भी जाना है। ठीक है, सारे साढ़े बाजार के सारे ताजर बैठे ने। मेरी दुकान जाती है। अच्छा, ठीक है, किराया नहीं देते? किराएदार नहीं मैं हैगा। ठीक है, मेरा होलसेल का कैश का कारोबार है। ठीक है, इस मेन बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। अच्छा, क्या काम करते कैश ਦਾ 10 20 वाला 50 वाला कैश कापी ਦਾ, हैं? नई कापी नोटों नई की? कापी नोटों वाली माला का। अच्छा, ये मेरा काम है होलसेल का। ठीक है। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। कौन आए हैं? ਇਹ ਪੈਰਾਫੋਰਸ ਵਾਲੇ रमजान में आए हैं? ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੇ 10 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਤੋ ਕਾਪੀ ਛਾਪੀਆਂ ਲਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਰੰਪਰ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਈ ਕਰ ਦਿਓ। क्या आपने नाजायज तजावजात ਸਰ रखे ਕੁਛ होंगे ਵੀ बाहर? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। अगर वो प्रूव इस बात का? ਸਰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ। अच्छा, अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਈ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ 10,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ 4,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ क्या? ਵੀ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜੇ, ਤੇਰਾ ਐਂਡ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਤੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ 12-13 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਆਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਛੱਡੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਟ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਟ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਏਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਫਿਲਮ ਕਰਾਈ। ਆਖਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਉਹਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। हॉस्पिटल में क्या हुआ है? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦੂਦਾ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜੀ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੀ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਦਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਬੇਟੀਆਂ बेटियां? मैं क्या भार तुझे एक दिन वास्ते मैं भेज दो, मैं अपने बच्चों को पहले अपने बेली बाजार आ मेरा बिचला देना मैं आ गया। ये बच्चे मैं घरों गड्डी च पा के तेरे बाजार बुला ला यार, बिल बुल लै यार। मैं इतने बैठा था, मेरा भाई सूट लैन चला गया दर्दी को, मेरा पैराफोर्स की टीम आई, सीधी लगी आई। उन्हें कहा दुकान सील कर ली। मैं क्या सर कर लो। उन्हें कहा तेनू लैके जाना। मैं क्या मेरा कसूर दसो। उन्हें कहा तेरी तरपैल लगी है। मैं ये आपने नहीं ना लगानी? सर पूरे बाजार दी लगे रहे सी, साहब ने इजाजत दी सी तरपैला ला लो। अच्छा, इजाजत थी? हाँ जी, उन्हें कहा जो शेड का शेड्यूल आएगा तुहानू दस देगा, जिन्ने दिन धोपे तुसीं तरपैला पूरे बाजार दी लगियां ने। मैं क्या सर पूरे बाजार दी लग रही, अगर मेरी तरपैल दी तुहानू तंगी सर, मैं उस टाइम ला देना। मुंडे ने छुरी मारी, तरपैल लानी शुरू कर दी। उन्हें मेरा गिरे पार खिंच लिया। मैं अंदर नूं छडाया, बटन टुटिया, मैं जा डिग पिया अंदर वड़े। उन्हें कुटना शुरू कर दिता। उत्तों दूसरा वड़ गया, उत्तों तीसरा वड़ गया। इन्होंने मैंने कुटना शुरू कर दिता। 2 बजे 3 इतने बाहर खलो गए। मेरे कैमरे 2 इतने लगे ही तोड़ दिते इन्होंने, वो भी जेब च पा लिया। अच्छा, CCTV फुटेज नहीं है? सारे मेरे छोटे कैमरे सी कार्ड वाले, हाँ। वो तोड़ दिते इन्होंने। ब्रेकर तोड़े? बंद कर दिता। अच्छा, ब्रेकर भी बंद कर दिता। इन्होंने नेड़े दे कुटिया। मेरे भाई ने तो पता लगे, वो भज्या, वो आया। इन्हें नफरी भी थाने मंगवा ली। मेरे काउंटर के 15 तो 20 लाख रुपए कैश पई सी, नवी 50-100 वाली काउंटर के। उन्होंने मेरे काउंटर मुद्दे कर दिते सारे। हर चीज़ अंदर धर्म भरम हो गई। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਰੁੱਟੇ, ਸਾਰੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 150 ਦੀਆਂ ਰੁੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੈਸ਼ ਬਚਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮਰੀਜ਼ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਵੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰੂਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ये बैठे हुए हैं, ये क्यों बैठे ਹਾਂਜੀ हैं? ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਦੱਸੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ FIR हो गया आप? ਮੇਰੀ ਵੀ FIR ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਗੋਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਦੇ ਸੱਕੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਪੇਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਰਰ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਮੁਹੱਰਰ ਸੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਭਾਈ हैं? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਚਲਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं नहीं मनागा तो मनो मार दी अब आप क्या चाह रहे हैं? आप सारे क्या मेरे कहते हैं? बच्चे आपका आज क्या देखो मौका? आप एहतजाज रिकॉर्ड कराने बाजार के अपनी दुकान सारे बंद के मेरे ऊपर दसो केड़े- लेटे हुए हैं इस तरह नीचे ਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਊਡ ਏ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੀ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲ ਇਤਮਾਦ ਏ ਐ ਕਾਬਲ ਇਤਮਾਦ ਏ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਥਾਣੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ भाईजान हमें यहाँ से घसीट के ले जाया गया। अच्छा, इस भाई को लेके जाना चाहते थे, हमने बोला है कि आप जिसे मर्जी ले जाएं, हमने ये भाई को नहीं जाने देना। हमें पता था कि जाती रंजिश है इस भाई से। नाम क्या आपका? मेरा नाम उस्मान अली है। आप भाई हैं तीनों? हम तीनों भाई हैं। तीनों इधर काम करते हैं? ये 2 भाई इधर होते हैं, अच्छा ठीक है। मैं बाजार में छोटा सा काश्तकारी करता हूँ, रेडी वगैरह लगा अच्छा, के। रेडी लगाते हैं? हाँ जी, मैं रेडी लगाता हूँ। अब आपको क्या हुआ? पीरा फोर्स वालों ने वाकई मारे कि ये ड्रामा भी एक चलता है ना, वो तो नहीं है सच अरे बात? ड्रामे वाली बात नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह थाने के अंदर ले जाके मारा है, ठीक है। एक भाई थे यहाँ पे, उसने एक पिक्चर उतारने की कोशिश की कि यहाँ पे ज्यादती हो रही है, उसका मोबाइल ले लिया। अच्छा, उसे कहते हैं बेटा आप मोबाइल थाने से रिसीव कर लो। उसको साथ ले गया, उससे भी मारा अच्छा, कि तेरी एडी जरूरत तू साड़ी फोटो बना। बाहर मारन लगे ने पुलिस वाले ने कहा थे ना मारे अज कैमरे ऑनलाइन चलते पे ने, कैमरे ऑनलाइन चलते पे ने, इन्हों जे मारना है तो अंदर लै जाओ। अच्छा, अंदर ले जाके जो पुलिस स्टेशन? हाँ जी पुलिस स्टेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਆ, ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੜਾ ਲਓ ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ। ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੰਦਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਰ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। मैं किया सर मार दे पै जे, मेरा हाल देख लो की करते पे ने। मिन्नत मसाजत नहीं करते रहे आप? ये भाई ने की है, मेरी एक ही बात थी, मैं किसी बात की मिन्नत नहीं करूंगा। मेरा चला कोई क्यों नहीं जा रहा आपके पाँव? मेरी मारा कमर पे, मारा ही बहुत ज्यादा, इस भाई की टांगों पे मारा। अच्छा, टांगों के ऊपर? ये देखिए नाजरीन, ये भाई जो है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ ये सारा मामला क्या। भाई खड़े हो जाएंगे आप? नहीं हमसे करा नहीं आ जाएगा यार आप नौजवान हैं, रो रहे हैं, दिलेर बने ना आप। मार के मारी कमर में, ठुड्डे टांगे सुन चपेटे मार के ये मेरी टांग का हाल देख ले। ऊपर खड़े रहे हैं, हमें पाँव पार बिठा के जो है ना ठुड्डे मार के चपेटे मार, गंदी कलाम कर रहे थे हमारे साथ। पैरा वालों ने हमें यहाँ से घसीटा है, कहता है चलो ठीक है अब हम धरती भर रहे हैं। हमने भाई को साइड पे कर दिया कि यार आपकी हालत ठीक नहीं है तो हमें ले जाए आप। उधर ले गए, हमें रास्ते में धमकियाँ देते गए हैं कि अब जो हाल होगा ना वो आप खुद सोचेंगे भी नहीं कि जो आपके साथ होगा। कपड़े लो आके साढ़े को माफिया मंगवाते वो करते रहे हैं। हाँ जी, इस चीज़ के मैं हर्फ उठाने के लिए तैयार हूँ। जो हमारे साथ हुआ है वो ही है, लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ जो किया गया, ये पैरावाज जो रखे गए हैं, जो टीमें ये रखी गई हैं हमारे तशद्दुद के लिए, हमारे लिए रखी गई हैं। ये जो मरियम नवाज साहब है, हमारी रिक्वेस्ट है उनसे। आपने भाई ने जाए तजावजात रखे होंगे ना आगे, नहीं भाई, सामान सारा रखा होगा। देखिए मेरी बात सुने, हर दुकानदार मौजूद है इधर, कोई ऐसा मसला नहीं था। वो हमारे साथ रंजिश सी जो पुरानी थी वही हमारे साथ निकालना चाह रहे थे, ठीक है। हमारे साथ ज़्यादा अफसर थे तो हमें कहते कि जुर्माना करना है या दुकान सील करनी है, ये इनको अलाउ नहीं था कि हमारे ऊपर तशद्दुद करते। अब आप क्यों बैठे हुए हैं, खड़े नहीं हुआ जा भाई मेरी टांगों पे खड़ा नहीं होया जा रहा, मुझे टांगों पे खड़े रहे। ये रो खुद क्यों रहे हो, क्यों रोना आ रहा है? मेरी भाई कमर में दर्द इतनी शदीद है कि मेरी पसलियाँ टूट गई हैं।
वो एक्सरे सुबह रिपोर्टें आ जाएंगी, आप खुद चेक कर लेना। ये मेरी टांगों की हालत देख लें आप। मुझे बताइएगा, कल की सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक शख्स है, वो उससे तो चला भी नहीं जा रहा, वो कह रहा था कि मेरा दिमाग का ऑपरेट होना था, मैं इधर आया हूँ दुकान पे आप उधर आते हैं अपनी टीम के हमरा, उसकी दुकान के अंदर उसको ले जाकर तशद्दुद करते हैं, इतना तशद्दुद करते हैं कि उसके भाई को उसकी जान बख्शी करवाने के लिए आता है तो आप फिर उसके ऊपर भी लाठीचार्ज करते हैं। उसके बाद आप जो है उनके ऊपर FIR दे देते हैं, फिर उसके बाद उनके 2 भाइयों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उनको भी तशद्दुद का आप निशाना बना देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये सोशल मीडिया को एज ए टूल यूज़ कर रहा है। हम पैरा के मैंडेट के मुताबिक जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन जो है वो कर रहे थे बहुकम DC साहब, उसके बाद हमारी SDO साहबा जो है उन्होंने हमें भेजा है। मैं हमरा अपनी टीम उधर पहुंचा हूँ, बहुकम DC साहब और SDO पैरा साहबा जो है उन्होंने हमें भेजा था। ठीक है। तो जब हम गए उधर तो इसका जो सामान है वो बिल्कुल रोड के सेंटर में पड़ा हुआ था, उसकी पिक्टोरियल एविडेंस जो है वो मेरे पास है। तो मैंने इनको सॉफ्ट जो है वो वार्निंग दी है कि अपना सामान वगैरह जो है ना वो आप जल्दी अपना अंदर कर लें, मैंने आगे भी ऑपरेशन करना है। ठीक है। तो उसने बोला है कि मैं कर लेता हूँ, पहले आप दूसरों का करवा लें। मैंने कहा पहले मैं आपके पास आया हूँ, बाकियों का सामान अंदर है तो आप काइंडली अपना सामान वगैरह अंदर कर लें। ठीक है। इससे कोई पर्सनल मेरा कोई ऐसा मैटर नहीं है जितना वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं इस तरह मैं नहीं करूँगा, दुकान के अंदर चले गए हैं। ठीक है। एक लड़का था उसका भाई, वो सामान वगैरह उठा रहा था, तो मैंने कहा जल्दी काइंडली कर लें, ज़रा टाइम शॉर्ट है, मैंने आगे भी इंक्रोचमेंट का जो जिन्होंने की हुई उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है। तो उन्होंने कहा कर लेते हैं, आपको मतलब इतनी जल्दी क्या है ये वो। उसके साथ मतलब मेरे जो मुलाजमीन हैं उनके साथ बदतमीज़ी करने शुरू हो गए, तो उनको गालियां वगैरह दी हैं। अच्छा। इसके वालिद की एक रेडी है, एक इसके कज़न की है, या वो किराए पे लगाता है दुकान के सामने, ये बाज़ार के अंदर ना 2 रेडियां लगाता है। अच्छा, वो रेडियां लगाते हैं? रेडियां भी लगाते हैं और दूसरा सामान भी बाहर वो उसने रखा होता है, फट्टे वगैरह। तो चलती फिरती होती है कि एक जगह पे? बिल्कुल एक जगह पे फिक्स इसने की हुई हैं, 2 रेडियां लगाते हैं, एक पे सॉक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा। तो वो भी इनकी हैं। ठीक है। तो जब मैंने इनको मतलब पहले भी इनको 1-2 दफ़ा मैं फ़ाइन भी कर चुका हूँ। ठीक है। तो वो इस चीज़ को 15 पे उस टाइम इसने कॉल भी किया जब मैंने फ़ाइन किया है, तो मैं काफ़ी दफ़ा इनको वार्निंग भी दे चुका हूँ, 1-2 दफ़ा फ़ाइन भी किया है, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। तो गालम गलोच के बाद फिर जो ये बंदा है रुस्तम नामी, ये अंदर चला गया है। तो मैंने बोला कि आप बाहर आ जाएं, जिस तरह आप बदतमीज़ी कर रहे हैं मैंने आपकी शॉप सील करनी है। वो बदतमीज़ी में क्या कर रहे थे? गालियाँ निकाल रहे थे। आपको? नहीं, मेरे मुलाजमीन को। क्या कहता था? बस गालियाँ निकाल रहे थे कि आप बदतमीज़ हैं, मेरे साथ आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह मैं करता रहूँगा, आप जो मर्ज़ी कर लें। ठीक है। आप ऐसे क्या कर सकते हैं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, इस तरह धमकियाँ दे रहे थे। ठीक है। तो जब मैंने बोला कि बाहर हैं तो साथ बाज़ार वाले भी इकट्ठे हो गए हैं। आपने वीडियो के अंदर देखा होगा तकरीबन कोई 150-200 लोग उधर इकट्ठे हुए थे। तो जब वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं तो मैंने सोचा कि इस तरह ये मज़ामत जो हो रही है, तो मैंने फ़ौरन 15 पे कॉल की है। तो 15 कॉल के बाद मैंने फिर अपनी मैडम साहबा को कॉल की है, SDO पैरा को। ठीक है। तो वो भी उन्होंने कहा कि मैं भी पहुंच रही हूं, तो आप पुलिस को बुला रहे हैं। उस टाइम पुलिस भी आ गई है। ठीक है। ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, ये बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफी है, इसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं। निशानात इतने उनके पूरे जिस्म के ऊपर, वो खुद भी उन्होंने जुल्म किया, आपका कहना है? मैं आपको बताता हूँ, देखें हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। ठीक है, खाली हाथ हम लोग गए हैं, पैदल गए हैं बाज़ार के अंदर। तो 300-400-200 लोग जब इकट्ठे होते हैं, आप ये समझे कि हम अपनी जो वो मज़ामत कर रहे हैं, अपनी जान छुड़वाने के लिए हमने 15 पे कॉल की है। पुलिस आके उनको ले जाती है? पुलिस आती है, फिर हम लोग और पुलिस मिल के। अच्छा। उसके एक भाई छोटा है या बड़ा, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, 2 भाई हैं उसके। इसने बोला है कि मैं बीमार हूँ, मेरा ऑपरेशन होना है, ये वो इस तरह। तो मैंने कहा इसको ना पकड़ें। ठीक है। इवन तब भी ये गालियाँ दे रहा था। ठीक है, आवाम की सपोर्ट लेके। ठीक है। तो हमने इसके भाइयों को अरेस्ट किया है, अरेस्ट करके फिर थाने ले गए, उसके ख़िलाफ़ FIR दी है। अच्छा। FIR के बाद फिर हमें नहीं आइडिया, उनकी वो बेल वगैरह भी हो गई है। बेल हो गई है? वो बिल्कुल ठीक थे। वो कह रहे हैं जब हम उधर से बेल करवा के आए हैं ना, एक भाई से तो वो कह रहे हैं वो तो उसने कलमा पढ़ा भाई, वो कलमे की कसम खा के, अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा है कि उनका ये कहना है कि पुलिस स्टेशन जाकर एक अलहदा कमरा था, उसके अंदर CCTV फुटेज कैमरा नहीं लगा हुआ था, उधर जाके हमें इस तरह बिठाया गया और सारी रात तशद्दुद करते रहे। उसके निशानात भी उनके पास मौजूद हैं।
देखें, जब हम कार्रवाई करेंगे, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे, तो फिर इस तरह इन्होंने इल्ज़ाम तो हमारे ऊपर लगाने हैं। यानी कि आपने टच तक नहीं नहीं, किया? बिल्कुल, ये जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इवन कि इन्होंने खुद, मैं आपको ना पिक्चर देता हूँ उसके, पिक्टोरियल बिल्कुल उसके मतलब ना टाइम, उसके साथ उसकी डेट, ठीक है, हमने पिक्चर ली है। मेरे जो मुलाजमीन हैं उनके वो जीपीएस वाली? हाँ जी, जीपीएस वाली। इन्होंने गिरेबान पकड़ा और उसका वो फटी हुई है शर्ट वगैरह, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वो आपको पिक्चर शेयर करता हूँ। फिर जब उधर इनको अरेस्ट करके स्टेशन ले गए हैं, उधर भी वो जो लड़के हैं जिनको पकड़ा है उनकी भी पिक्चर हैं। कोई ऐसी चीज़ ये दिखा दें कि उनको हाथ तक कि इन्होंने किसी बंदे ने लगाया है। कि उधर हमने तो इस्तगासा दिया है पुलिस के हवाले करके, हम तो आ गए, हमारा तो काम इतना था। ठीक है, तो ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर ये तशद्दुद किया गया, 300 लोगों के सामने हम कैसे तशद्दुद कर सकते हैं? वो तो कह रहे हैं कि हमने अपनी जान बचाई है, पुलिस मंगवाई है उधर, ठीक है, सारे एविडेंस हमारे पास है, 15 की कॉल भी है। उसके साथ फिर SHO साहब को मैंने खुद कॉल की है, मैडम साहबा को कॉल किया है, वो मौके पे पहुंचे हैं, मैडम साहबा आई है, उनके साथ इनके जो मार्केट कमिश्नर बाज़ार के सदर और इस तरह की जो मुअज़्ज़िज़ीन थे बाज़ार के, वो आए हैं, ऑफ़िस के अंदर बैठे हैं, उनके साथ बात हुई है। मैडम साहबा ने समझाया उनको कि ये जो आप लोग इंक्रोचमेंट करते हैं, 2-3 दिन पहले तो इनके साथ मीटिंग भी हुई है कि आप लोग इस तरह जो इंक्रोचमेंट है इसको ख़त्म करें। जिस बंदे को हमने अरेस्ट नहीं किया वो इधर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है। ये बिल्कुल ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 1% भी जो है वो नहीं, 1% भी मैं हलफ उठाता हूँ कि रुस्तम नामी बंदे को मैंने या मेरी टीम ने हाथ भी लगा, इवन के उन्होंने खुद हमारे ऊपर तशद्दुद किया है। हमारे जो मुलाजमीन हैं उनके वो गिरेबान फटे हुए हैं। मैं आपको पिक्चर शेयर कर देता हूँ, हमारे पास तो मुकम्मल एविडेंस है। एविडेंस के ऊपर ये बात करें, ऐसे ये बातें करते रहें जिस तरह मर्जी करें, उसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जितना भी चल रहा है सारा झूठ है। देखें, ये बिल्कुल झूठ है। अच्छा, अगर कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी हो तो वो सामने ले आएँ, उनके पास कोई एविडेंस है तो वो सामने ले आएँ।